جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تقریباً تمام ڈومینز پر سخت حریف تعلقات ہیں اور فوجی نقطہ نظر ایک ایسا موضوع ہے جس میں دونوں ممالک زیادہ سے زیادہ ملوث ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انڈین ملٹری اور پاکستانی ملٹری ایک دوسرے کے خلاف کیسے موازنہ کرتے ہیں۔ فوج ہندوستانی فوج میں پاکستان کے 6,54,000 کے مقابلے میں 1.2 ملین فعال ڈیوٹی فوجی اہلکار ہیں، جبکہ ریزرو ڈیوٹی بھی پاکستان کے 6,50,000 کے مقابلے میں 9,60,000 کے ساتھ ہندوستان کے حق میں ہے۔ ہندوستانی فوج دنیا کی سب سے بڑی کھڑی رضاکار فوج ہے، ایک ایسا نظام جو بغیر کسی لازمی بھرتی کے فوجی نمبروں کو برقرار رکھتا ہے۔ ٹینکوں کی تعداد کے لحاظ سے اس کے ہندوستان کے 4,614 ہیں، جبکہ پاکستان کے 3,742 تقریباً۔ پاکستان کا ٹینک فلیٹ اب بھی بڑی حد تک چائنیز فرسٹ جنریشن ٹاپ اور سیکنڈ جنریشن چائنیز ٹاپ اور الزرار پر مشتمل ہے، ہر ایک میں 350 سے زائد یونٹ ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی اور تباکن صلاحیت کا ہندوستان کے 3 آرڈی جنریشن ارجن اور T-90S ٹینکوں سے دور دور تک موازنہ نہیں کیا جاتا۔ 2,410 روزانہ مشترکہ طور پر تیار کردہ T-72 اپ گریڈ ہونے کے مستقل مرحلے میں ہے، اور تیسری نسل کے ٹینک اپنے فائر کنٹرول سسٹم مین گن تھرمل دیکھنے کی صلاحیت اور ہمارے پڑوسیوں کے خلاف کمپوزٹ آرمر میں بہترین ہے۔ پاکستان اس وقت پیدل فوج سے لڑنے والی گاڑیوں کی تعداد اور فائر پاور دونوں لحاظ سے ہندوستان سے آگے ہے، جبکہ بھارت اب بھی 2,500 BMP-2S پر قبضہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اس کلاس میں زیادہ قسم ہے۔ ہمارا پڑوسی 2500 SM-113 اور 1,000 سعودی عرب کی ساختہ الفہد پر قبضہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس مائن رزسٹڈ ایمبوش پروٹیکٹڈ M1224 بھی ہے، جس کا معیار اور قابل اعتماد US ہموی کے برابر ہے۔ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے لحاظ سے معیار اور درستگی کے لحاظ سے کس کا بہتر فائدہ ہے، یہ تصور کرنا بعید از قیاس ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں اس میں غوطہ لگانے دیں۔ پستول کی لیبر کے لحاظ سے بیریٹاس اور گلوکس دونوں طرف سے استعمال ہونے والے عام ہیں، اور کوئی بھی ان ہینڈ گنز کی میراث سے انکار نہیں کر سکتا۔ پاک اسپیشل فورسز بہترین 6 ساور P226/9 سیریز بھی استعمال کرتی ہے، اور کے لیے وہ افسانوی HK MP5 اور FMP90 استعمال کرتی ہے۔ دوسری طرف میں MP5 اور Uzi/مائکرو Uzi سے لے کر MP9 کی شکل میں سوئس ایکسیلنس تک ہندوستان کا مختلف نقطہ نظر ہے، جبکہ پرانی سیف کاروانوں کو گھر میں تیار کردہ آردے سے تبدیل کرنے کا مقامی راستہ بھی اختیار کرتا ہے۔ پاکستان لفظی طور پر اپنی فعال ڈیوٹی رائفلوں کے ہتھیاروں سے دوچار ہے۔ ان کی زیادہ تر افواج اب بھی دادا جی کی نسل کے بھاری بھرکم HKG-3S کا استعمال کرتی ہیں، ایک مشہور ثابت شدہ جرمن پلیٹ فارم، لیکن آج کے دور کے لیے نہیں، اور چینی ٹائپ 56 AK-47 کلون۔ یہاں تک کہ پاکستان کے اسپیشل سروس گروپ کی اسپیشل فورس کی اکثریت بھی کافی پرانی SIG SG-550 کو میدان میں رکھتی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق M4S اور سٹر 8 کے ساتھ SSG کے صرف چند یونٹ تعینات کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان 5.45 کے لیے CZ برین اور H91 اور AK-103 کو 7.62 کارتریج کے لیے اپنے G-3S کو تبدیل کرنے کے لیے آزما رہا ہے، لیکن اب تک حتمی فیصلوں میں اس کی ترقی صفر ہے۔ ہندوستان کو مختلف قسم نسبتاً جدیدیت اور معیار کے لحاظ سے ایک الگ فائدہ حاصل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی افواج کی زیادہ تعداد جو ہمارے پڑوسی سے زیادہ تعداد میں رائفلیں رکھتی ہیں، ان پر بالکل حاوی ہو جائیں گی۔ ہمارا آبائی وطن اب بھی ہندوستانی فوج کی بنیادی معیاری رائفلز میں سے ایک کے طور پر ایک قابل فخر مقام رکھتا ہے۔ کچھ ہینڈلنگ ایشوز کے علاوہ یہ ایک بہت مہذب رائفل ہے، اور واضح طور پر نیچے کی دیکھ بھال کرنے والی اور پرانی پاک ٹائپ 56 رائفل سے بہتر ہے۔ یہ بھی AK-203 اور 6716I کے جرمنامر کا ماسٹر کلاس سے تبدیل کیے جانے کے مرحلے میں ہے۔ 716 از معیاری لمبائی اور DMR کے قابل بیرل دونوں کے ساتھ ایکاگز اور ریل سسٹم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مشہور AK-47 اور کو ہندوستانی فوج کی دیگر بنیادی معیاری ایشو رائفلز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سے سبھی پکٹنی ریل، درمیانی رینج / تھرمل آپٹکس اور میزل آپشنز کے ساتھ اپ گریڈیشن کے مرحلے میں ہیں۔ ہندوستان کے اپنے SSS ڈیفنس کے ذریعہ، اور پھر ہمارے پاس ہماری اسپیشل فورسز ہیں، جن میں ٹیوٹار 21S کے ساتھ گروپ حکمرانی شامل ہے، جبکہ مارکوس M4A1S کے ساتھ FNSCAR LS اور HS کے چھوٹے بیچ کے ساتھ مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ سچ میں پاک کے پاس اپنی انوینٹری میں کچھ اچھی سنائپر رائفلیں ہیں، خاص طور پر ایکوریسی انٹرنیشنل آپٹک وارفیئر رائفل 308 ونچسٹر اور 338 لاپوا میگنم اور بیرٹ M8250 CALS۔ لیکن کیا پاکستان سناپنگ میں اچھا ہے؟ کسے پتہ؟ ہمارے پاس بہتر ہے۔ ڈریگونوف اور گیلیل سناپرز کے ساتھ 400 میٹر کے سلک شاٹ سے لے کر ساپو TRG-42S اور بیرٹ M8250 CALS کے ساتھ میل لمبے ونڈ کٹر تک ہندوستانی سناپرز نے یہ سب کچھ ڈھک رکھا ہے، بہترین اسکوپس اور آنکھوں کے ساتھ مل کر ایک ورسٹائل کیمپ۔ توپ خانے
पाकिस्तान का सबसे मोहलिक आर्टिलरी सिस्टम 450 चीनी 100-300 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। चीनी MLRS की ये क्लासें अगरचे कोई ठोस डेटा नहीं है, फिर भी दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक तवील फासले तक तोपखाने की जंग में मौत लाने वालों के सियार घोड़े समझे जाते हैं। इसके अलावा उनके पास ज्यादातर सोवियत BM-21 ग्रेड्स और इसी तरह के का चीनी वर्जन है। खुद से चलने वाले तोपखाने के हवाले से पाक के पास 155 मिलीमीटर M109 के 400 यूनिट और उम्र रसीदा M110S के 100 यूनिट्स भी हैं। और टोड आर्टिलरी के लिए एक बार फिर टाइप 59S 86S और 54S के पुराने चीनी बेड़े हैं, जिनमें एक 55M टर्किश पेंटर्स और SM198S शामिल हैं। भारत का जवाब, इसकी खाम फायर पावर बेबी। एक बार फिर हिंदुस्तान में दर्द की मुख्तलिफ अक़साम के जदीद मुरक्कब के मैदान। हिंदुस्तान के पास 150 असल BM-21 ग्रेड्स हैं, न कि चीनी ग्रेड की कुछ कापियाँ। और हाँ, वो तौसी रेंज की मुख्तलिफ हालतों के साथ अपग्रेड किए गए। और फिर मकामी पीनाका MLRS, जिसे दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक समझा जाता है। हमारे पास 370-300 मिलीमीटर सोवियत 9 के 58 हैं, जो 300 मिलीमीटर कैटेगरी में बेहतरीन MLRS में से एक है। खुद से चलने वाले जुमरे में हमारे पास 100 तबाकुन जनूबी कोरियाई 155 मिलीमीटर के 9 वज्रा और मकामी 130 mm/39 किलेबर अर्जुन टोड तोपखाना। ये मुतहर्रिक और तनव्वो की एक और कहानी है, क्योंकि हमारे पास वे सिस्टम्स M777 की बरतानवी शानदार सलाहियत है, जो इस जुमरे में सबसे मोहलिक भी है। 85 स्वीडिश FH-77S 400 और मकामी डेनिश जामिद आर्टिलरी के तौर पर 755S की इन्वेंट्री के साथ इस वक्त LOC में एक मुकर्ररा अहम आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स में से एक रहा है और भी अफवाज में शामिल होने की कतार में है, जब उन्होंने हिंदुस्तान के 76 यौम जमहूरिया की तकरीबात पर 21 तोपों की सलामी में शानदार आगाज किया। लेकिन फिर हकीकी लड़ाई की सलाहियतों की तरफ आना ये एक पूरी दूसरी कहानी है। हिंदुस्तानी फौज की एक तवील और मंजिला तारीख है और इसे जदीद जंग में तरबियत और मशगूलियत के ज्यादा मौके मिले हैं। हिंदुस्तान के ज़मीनी अमले और हथियारों के निज़ाम में कमाल, दुरुस्तगी, भरोसे और अपने मुखालफिन पर काबू पाने के लिए तरबियत का इंतजाज है। और पाकिस्तान के नामों और नंबरों को देखें तो हिंदुस्तान को वाज़े बसरी फ़ायदा हासिल है। मिसाइल सिस्टम्स। पाकिस्तान अपने सेम्स को हर मुमकिन हद तक जदीद बनाने के मरहले में है और उसके लिए 80 दरमियाने फासले के सैम का इजाफा इसका सबूत है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने इन सेम्स को लाहौर के मुजाफात में तैनात किया है, जो पाक भारत सरहद से 30 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। लेकिन सतह से फिजाई खतरात को कामयाबी से रोकने में पाक की असल ताकत इंतहाई मशकूक है। दरमियानी रेंज FM 90 ब्लडहाउंड PF 2 और मुख्तसर रेंज HQ 7 और काफी नहीं है। दरी असना हिंदुस्तान के पास सेम्स का एक पूरा मेगा हथियार है। अगर ये सिर्फ चंद हवाई मीलों की बात है तो इसे सिर्फ S125 पीचूरा पर छोड़ दें। एक बदनाम जमाना हैवान जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन 1960 की वियतनाम जंग से लेकर 2022 की यूक्रेन जंग तक अपनी सलाहियतों का सबूत देता रहा है। और हिंदुस्तानी फिजाइया के पास उन दरिंदों के 25 स्क्वाड्रन हैं। दीगर मसावी तौर पर काबिल निज़ामों में सोवियत 9 के 33 OSA AK असगिर और डर्बी मिसाइलों के साथ इसराइल का स्पाइडर बाराक 8 LRSM शामिल है। और आकाश के साथ हिंदुस्तानी कामयाबियां देख को मजीद सजाती है। पृथ्वी एयर डिफेंस, पैड और एडवांस्ड एयर डिफेंस 2 नाकाबिल यकीन हद तक काबिल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म है। और फिर आता है रूसी S-400, जो कि खुद अपनी एक लीग में है और उसने खुद को आलमी नामों में शामिल कर लिया है, जैसे कि राफायल डेविड स्लिंग आयरन डोम, लॉकहीड मार्टिन और रेतियामन 104 पीट्रियट पाक 2 नीविक्स। एक ऐसा मौजू जो जंग में आखिरी हरबे के तौर पर आता है और उसकी राजदारी ऐसी है कि कोई भी आम शहरी मुख्तलिफ एटमी सुपर पावर्स के जोहरी हथियारों की सही तादाद हासिल नहीं कर सकता, चाहे इंटरनेट को उल्टा कर दिया जाए। लेकिन तमाम मीडिया में ये बात बड़े पैमाने पर समझी जाती है कि पाकिस्तान के पास भारत से 1-2 दर्जन ज्यादा जोहरी हथियार है। यहाँ तक कि खुद विकिपीडिया भी इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान के पास भारत के 160 के मुकाबले में 165 वारहेड्स हैं। लेकिन क्या ये वाकई कोई मसला है? दरहकीकत पाकिस्तान के पास कुछ काबिल जोहरी सलाहियत रखने वाले हैं। पाक के जोहरी लफ्जी तौर पर बैन अलबर अज़मी भी नहीं है। मुख्तसर रेंज गजनवी और शाउन से लेकर तवील शाउन और शाउन तक पाकिस्तान के पास एक माकूल जोहरी सीरी है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद हर न्यूक्लियर के लिए हिंदुस्तान बेहतर मुतबादिल रखता है, जिसमें हर एक के पास बेहतर सेफ दुरुस्तगी और नेविगेशन सिस्टम है। अगन से अगन तक की तरक्की का इंतहाई तेज विकर वाकई नामजद बैन अलबर्रअज़मी बैलिस्टिक मिसाइल कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान के पास हतमी अगन के लिए कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा हद 8000 किलोमीटर है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान राफेल के साथ एक शानदार टैक्टिकल नेवी की तैनात करने वाले के तौर पर खड़ा है, जबकि पानियों की हिफाजत 6000 टन जोहरी सलाहियत रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल आब्दोस 61 अरियंस से होती है। फिजा
ग्लोबल एयर पावर्स 2022 रैंकिंग के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया छठे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स 18वें नंबर पर है। और ये हमारे पड़ोसी के लिए मुनासिब जगह से ज्यादा है। लड़ाका बेड़े का एक बड़ा हिस्सा अब भी उम्र रसीदा मराश 3 और मराश 5S पर मुश्तमिल है, और चीनी JF-17S और J-10S के हालिया हुसूल को अभी तक काबिले असर खरीदारी के तौर पर समझा जाना बाकी है। उनकी ताकत के गैरजानिबदाराना तज्जिए पर गौर करते हुए ये चीनी जेट तैयारे खराब नहीं हैं, बल्कि अपनी कीमत को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा मौसर है। लेकिन तशवीश इस हकीकत में है कि चीन खुद मगरबी मेयारात और सलाहियतों को नजरअंदाज करता है और अपने J-10S को 4.5 जिनर के लड़ाका तैयारों के तौर पर फरोख्त करता है। क्या वो वाकई इतने अच्छे हैं? शायद वक्त बताएगा। हो सकता है कि वो इस वक्त तक जवाब नहीं देंगे जब तक कि चीन उन्हें ताइवान के खिलाफ भरपूर हमले में तैनात नहीं करता। लेकिन अब तक जंग के चश्मों में उनकी साख सिफर है। पाक फिजाइया के बेहतरीन तैयारे ओल्ड जनरेशन ब्लॉक 15C/D जनरल डायनामिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन्स है। F-16S सबसे ज्यादा बरामद किए गए हैं और यकीनन दुनिया के बेहतरीन मल्टी रूल लड़ाका तैयारों में से एक है। बहुत पुरानी जगह होने की वजह से पाकिस्तान को USA से $450 मिलियन का फ्लैट सस्टेनमेंट इमदादी पैकेज मिला, जहां पे 74 F-16S को बेहतर तकनीकी खुसूसियात के साथ अपग्रेड किया जाएगा। हिंदुस्तान ने अपने बेहतरीन हवाई जहाजों को अपग्रेड करने के इस गैर मुतवक्के अमरीकी इक़दाम में रद्द-ए-अमल की अदम मौजूदगी को बरकरार रखा, लेकिन फिर भी ये तशवीश का एक मामूली मसला भी नहीं है जब उनके बला 15S को हिंदुस्तान के 3 RD जनरेशन MiG-21 बाइसन्स के जरिए मुकम्मल तौर पर खराब किया जा रहा है। क्या लतीफ़ा है! हादसात की मुसलसल तारीख से मुतालिक हिंदुस्तान ने MiG-21 बाइसन्स के तमाम स्क्वाड्रन को ग्राउंड कर दिया है, लेकिन इस तीसरी नस्ल के ग्राउंड तैयारे ने हिंदुस्तानी फिजाइया की तारीख में अपनी शनाख्त बनाई है। पुराने नामों में जैगवार्स और मराज 2000S हैं, जो अभी भी बमबार तैयारों के लिए बहुत काबिल हैं, जिनमें से 1 दर्जन बालाकोट हमलों में इसराइली स्पाइस 2000 बमों से लैस थे। अब भी नुमायां तौर पर काबिल MiG-29 को जारी रखे हुए हैं, जिनमें से तमाम $69 मिलियन के अपग्रेड कंट्रैक्ट के मरहले से भी गुजर रहे हैं। IAF की रीढ़ की हड्डी इसका कोई और नहीं बल्कि सखुई Su-30M के आइस 272 मजबूत कुव्वत थ्रस्ट विक्टरनक के काबिल होशियार जानवर, जो 36 मल्टी रूल न्यूक्लियर डिटेंट डसुलट राफलिस के साथ जुड़ा है, जिसके सबसे ऊपर हिंदुस्तान अपनी सलाहियतों को साबित कर रहा है, क्योंकि हमने हेल तेजस MK1 के साथ लड़ाका जेट सनत में कदम रखा है, जबकि तेजस MK2 और 5 TH जेल है एम का अपने बच्चों के कदमों में रास्ते पर है। जबकि पाकिस्तान ऐसी किसी पेशरफ्त से आ रही है, भारत दीगर बड़ी सुपर पावर्स के मुकाबले में बहरी बेड़े के मसाइल के बावजूद अपने जदीद मेयार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आइए मार्च नंबर्स को सुस्त करें और कुछ प्रोपिलर्स को ठीक करें। क्या पाकिस्तान के पास हमला आवर हेलीकॉप्टर है? नहीं, यहाँ तक कि वो अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की तादाद के साथ भी जिदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिर्फ MiG-17S और चंद अगस्टा वेस्टलैंड A-39S पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपाची A-60-22 दिखा रहा है, जो दुनिया का सबसे मोहलिक हमला आवर हेलीकॉप्टर है। MiG-24/35 हिंद-15, जो कि अब तक की सबसे बड़ी हेलीगिनशिप है। हिंदुस्तान का पहला मकामी हमला हेल LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि 100 हेल रुद्रा और 250 MiG-17S में भी इफादियत और हमला दोनों कस्में हैं। नीज हमें इंडियन एयरफोर्स के पास साबित शुदा अमरीकी CH-47 चिम्बिक्स को नहीं भूलना चाहिए। बहरिया अगरचे इसे ज्यादा बावकार अंदाज में ढालने की भरपूर कोशिश की जाए, लेकिन कोई भी समझदार शख्स ये जान लेगा कि भारत दोनों ममालिक के निजाम को आंखें बंद करके फैसला करके पाकिस्तान से कई गुना आगे। हिंदुस्तानी बहरिया एक खतरनाक मुसल्लह फोर्स डिवीजन है। ये बजा तौर पर ब्लू वाटर नेवी टैग का हकदार है, एक मेरी टाइम फोर्स जो तमाम समंदरों में आलमी सतह पर काम करने की सलाहियत रखती है। अमेरिका और चीन के अलावा हम सिर्फ तीसरा मुल्क हैं जिसके पास एक तैयारा बरदार बहरी जहाज है, और इनसत विक्रमादित्य और इनसत विक्रांत को हमेशा नाखत्म होने वाली पहचान मिलती रहेगी। पाकिस्तान, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिफर है। हिंदुस्तान के पास कितने तबाकुन हैं? 11 मोहलिक स्टील्थ/नॉन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ 12 स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट्स और 18 एक्टिव कार्बिट, सभी दांतों से लैस है। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर कायल करने वाला सिर्फ 6 कार्बिट, 9 फ्रिगेट्स और 0 डिस्ट्रॉयर। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान अपने समंदरों का नमक ना चख रहा हो। पाकिस्तान यहां तक कि पानी के अंदर भी खो जाता है, क्योंकि उनके 5 डीजल अटैक सब्स, इंडिया की 15 डीजल अटैक आबदोजों और एक जौहरी ताकत से चलने वाली इनसेट अलिया हिंदुस्तानी समंदरों के काबिल जेरे आब बादशाह है। पाकिस्तान के पास ज्यादा साहली पट्टी भी नहीं है, जबकि भारत 7वें बड़े बर्रे आजम के तौर पर उसकी लंबाई का 3/4 पानियों पर मुश्तमिल है। चूंकि हमारे पड़ोसी के पास कोई तैयारा बरदार बहरी जहाज नहीं है, इसका मतलब है कि मुल्क के पास बुलंद समंदरों से इंतहाई हालात में जेट तैयारों की तेजी से नकल व हरकत का कोई इम्कान नहीं होगा।
जबकि हिंदुस्तानी तैयारा बरदार बहरी जहाज में 29 के एस जेट तैयारों और MH-60 रोमियो सीहॉक हिलोस को हर वक्त इमरजेंसी के लिए ले जाते और तरबियत देते हैं। और जब हम बदनाम जमाना सब मैरीन कातिल बोइंग P-8I पॉजिडॉन के इनाम पर भी नजरें जमाए रखें तो पूरे अमूदी को समेटने के लिए मजीद किया होगा। बैन अल अक़वामी ताउन। हिंदुस्तान को बैन अल अक़वामी सतह पर बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है और वो एहतराम के साथ उन तमाम लाइमलाइट की मुस्तहिक है जो हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने मुताद्दिद दो तरफा / कसीर तरफा फौजी मशकों में हासिल की हैं जिनमें हम हिस्सा लेते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज दीगर बड़ी ताकतों जैसे अमरीका, बरतानिया समेत कई ममालिक के साथ बाकायदा मशकों और मशकों में शामिल हैं। फ्रांस, जापान, रूस, जर्मनी, इटली, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। यहाँ तक कि पैसिफिक एक्सरसाइज जैसे बड़े इवेंट्स में भी हमें सालाना स्पॉटलाइट्स मिलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को फौजी मशकों में इतनी हैसियत नहीं मिलती जितनी भारत को मिलती है। अगरचे उनकी घरेलू मशकें हैं, लेकिन पाकिस्तान को दीगर मगरबी मशकों में भी मदऊ नहीं किया जाता। चीन और रूस जैसे चंद बार आने वाले ममालिक के अलावा पाकिस्तान को शायद ही अमरीकी और यूरोपीय हम मनसबों की फौजी तैयारियों और ताकत की सतह का मजा चखना पड़े। यहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी ने फौजी साजो सामान के ईंधन की अदम दस्तियाबी की वजह से 2023 के इख्तिताम तक तमाम फौजी मशकें और जंगी मशकें मनसूख कर दी हैं, जबकि इस मामले में माशी बदहाली का भी कयास किया जा रहा है।